first of all, the equation. So what is the equation of the constant R circles? So if I talk about the equations, so if you talk about the equations, so what are the equations of the constant R circles? Equation becomes gamma R minus 1 plus gamma R minus 1 by x whole square equal to 1 by x square. Okay, so this is, what about the center? So if you calculate the center comes out to be 1 comma 1 by x. What is the radius? So if you talk about the radius becomes 1 by x. Fine. So if you look here, what is the range of your x? So if you look closely, the range of your x becomes from minus infinity to infinity, which means you can say that your center will always lie on the line gamma r equal to 1. तो अगर आप सेंटर यहाँ पे देखोगे तो सेंटर में ये वाली वैल्यू तो हमेशा 1 पे कांस्टेंट है. सो फ्रॉम देयर यू कैन से 2 पॉइंट्स दैट x इज चेंजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड सेंटर always lies on gamma r equal to 1 axis. So this center always lies on gamma r equal to 1 axis in case of constant x circle, and your x is changing from minus infinity to infinity. So to analyze this thing, you can break it into two parts. You will say that in one part I'll discuss about 0 to infinity, and in the second half I'll discuss about the minus infinity to 0. There also you can identify, if I'll put x gamma r equal to 1 comma 0. So this is the equation of the circle, gamma r minus plus gamma I minus 1 by x square equal to 1 by x square. So suppose I put the point gamma r comma gamma I equal to 1 comma 0. So if you put it here, you will again get to know that the both sides become equal, or you can say that all constant x circles pass through the point 1 comma 0. So you can write all constant x circle pass through point 1 comma 0. तो दोनों में देखो ये कॉमन प्रॉपर्टी आ गई ना कि चाहे आपका कांस्टेंट एक्स सर्कल हो, दैट विल आल्सो पास थ्रू 1 comma 0, कांस्टेंट आर सर्कल विल आल्सो पास थ्रू पॉइंट 1 comma 0. फाइन. तो अब देखो यहाँ पे दोनों ही पॉइंट्स अगर आप नोटिस करते हैं, सो इन बोथ द पॉइंट्स यू कैन आइडेंटिफाई all the constant x circles are passing through point 1 comma 0, and all the constant r circles are also passing through the point 1 comma 0. So these are the definitions of your constant x circles. Now what you can do in this case, you should also understand that if all the points which I have calculated, so I should also make a table on the basis of that. तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, पहले एक टेबल बनाते हैं जैसे हम लोगों ने लास्ट केस में बनाया था ना, तो यहाँ पे भी वैसी एक टेबल बनाते हैं. ये देखिए, this will be the values of x, this will be the center, and that will be the radius. Okay, so this can be the values of x, this is your center, and this becomes your radius. So center अगर आप यहाँ पे x की values check करोगे, so what are the values of x that you can get it from here? The values of x will become 0. So if this becomes 0, देखना यहाँ पे small x equal to 0 अगर आपने इसमें put कर दिया, so what will be the center? The center will become 1 comma infinity. So this becomes 1 comma infinity. What about radius? Radius becomes infinity. ये represent क्या करता है, इस पहले से एक डिस्कशन करना है. Next point is obviously we take x equal to 1. So if you take x equal to 1, देखो यहाँ से सेंटर कितना हो जाएगा 1 comma 1, रेडियस कितनी हो जाएगी 1, रेडियस हो गई 1. लेट मी टेक अनदर पॉइंट ऑफ, अच्छा यहाँ पे ऐसा करो ना, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों एक जगह पे ही ले लो, तो आपको दो टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो दिस विल बिकम 1 comma प्लस माइनस 1. सिमिलरली इफ़ यू टेक प्लस माइनस infinity, so this will become 1 comma 0, and radius also becomes 0. अब देखते हैं ये x equal to 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा. तो आपके पास ये इक्वेशन है गामा r माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस गामा r माइनस 1 by x होल स्क्वायर equal to 1 by x square. This was the equation.
बट ये इक्वेशन आपको मिली कहाँ से थी उसका भी चर्चा करते हैं। तो ये इक्वेशन आपको मिला था यहाँ से, जब आपने लिखा था ZL बाई Z0 इक्वल टू स्मॉल r प्लस JX, ये हम लोगों ने मान लिया था, एंड यू रोट इट डाउन दैट योर गामा V इक्वल टू गामा R प्लस J टाइम्स गामा I इक्वल टू स्मॉल r प्लस 1 स्मॉल r माइनस 1 प्लस JX अपॉन स्मॉल r प्लस 1 प्लस JX। ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0 में आपने ZL बाई Z0 का जो वैल्यू था वो ऐसा कुछ उठा के वहाँ पे पुट कर दिया था। देन यू गेट टू नो अबाउट दिस। सो इफ आई पुट x इक्वल टू 0 देयर, ये यहीं से हमें मिला था। सो इफ आई कैन पुट x इक्वल टू 0 देयर, सो वंस यू पुट x इक्वल टू 0 you will get to know that your gamma v is coming out to be gamma r plus j times gamma I equal to x को 0 रखोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी 1 प्लस जे 0, और यू कैन से दैट दिस थिंग इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट योर गामा I equal to 0 axis. So what is gamma I equal to 0 axis? देख लो, gamma I equal to 0 axis is nothing but your gamma R axis or real gamma axis. Fine. जैसे मान लो अगर मैं पूछूं what is y equal to 0, so you will say y equal to 0 means x axis. What is x equal to 0, so you will say x equal to 0 means y axis. तो वैसे ही अगर आपका यहाँ से कंपैरिजन करने पे gamma I equal to 0 आ गया, that means you are getting it as your gamma R axis. So this point is very important that this x equal to 0 is representing a circle which is a straight line. क्योंकि यहाँ पे radius infinity है ना, so this will represent real gamma axis. This is representing real gamma axis. तो जब भी आपका एक ऐसे सर्कल्स जिनके रेडियस इनफाइनाइट होती है, they actually contribute in the straight line. So you can say that small x equal to 0 is the biggest possible x circle which is actually representing your gamma r axis. जैसे वहाँ पे small r equal to 0 biggest possible r circle होता था, वैसे यहाँ पे small x equal to 0 biggest possible x circle है, बट ये सर्कल नहीं है असल में, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, वो भी कौन सी वाली, रियल गामा एक्सिस वाली. तो ये एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट यहाँ से समझ में आया. ठीक है, चलो अब एक चीज यहाँ से देखते हैं, उससे थोड़ा सा हमें बेटर विजुअलाइजेशन मिलेगा. हाउ शुड वी गो अबाउट द डायग्राम्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक द बाउंड्री ऑफ द स्मिथ चार्ट. व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ द स्मिथ चार्ट इफ आई टॉक अबाउट. देखो यहाँ पे ये है स्मिथ चार्ट की बाउंड्री, ध्यान से समझना इस बात. ये है स्मिथ चार्ट की बाउंड्री, तो इसका मतलब ये कौन सा सर्कल होना चाहिए, दिस शुड बी x इक्वल टू 0 सर्कल. ओके, दिस पॉइंट इज 0,0, this point is 1,1, this point is 0,1, this point is 1,0, this point. ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, ये जो आपने यहाँ पे लिखा है स्मॉल x इक्वल टू 1, तो ये तो आपने स्मॉल r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू 0, लेट मी राइट इट एज. इसको बस समझ लो तो आपको विजुअलाइजेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये दिस इज स्मॉल r इक्वल टू 0 सर्कल, ये वाला. Now I want to make small x equal to 1 circle. So how can you draw the small x equal to 1 circle? In case of small x equal to 1 circle, आ गया ये. तो small x equal to 1 circle के केस में सेंटर कितना है 1,1 और रेडियस कितना है 1. तो देखो सेंटर कहाँ पे आएगा 1,1 पे. ये सेंटर मैं आपको बना के दिखाता हूँ. ये देखिए, ये रहा सेंटर, दिख रहा है सबको सेंटर. देखिए दिस इज द सेंटर 1,1 ऑफ x इक्वल टू 1 सर्कल. ठीक है, रेडियस देखो कितना है 1, तो 1,1 सेंटर से आपको रेडियस 1 की लाइन बनानी है. ये लाइन देखो कैसे बनेगी, ये देखिए, देखना जरा ध्यान से. ये कुछ ऐसा बनेगा, चेक करना. अब ठीक है, ठीक है, देखो ऐसे ही बनेगा ना. तो बड़ा इंपॉर्टेंट इसको विजुअलाइज करना यार. ये देखिए, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर स्मॉल x इक्वल टू 1 सर्कल. तो स्मॉल x इक्वल टू 1 सर्कल का सेंटर कितना आ गया 1,1 और उसकी रेडियस कितनी दिख रही है आपको 1. तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, इसके ऊपर वाला भी 1. ठीक है. सिमिलरली इफ आई वांट टू मेक स्मॉल x इक्वल टू -1 सर्कल,
तो स्मॉल एक्स इक्वल टू -1 वाले सर्कल का रेडियस कहाँ पे आ जाएगा, देखिए इट विल कम एट -1, समझिएगा इस बात को. सो दिस विल बिकम 1, -1. दिस इज स्मॉल एक्स इक्वल टू -1. तो एक सर्कल इसमें नीचे बनाना पड़ेगा. आइए बनाते हैं वो सर्कल भी. तो देखो इसके नीचे अगर आप सर्कल बनाओगे बिल्कुल ऐसा ही, जिसका सेंटर ऐसा हो और रेडियस ऐसा हो, तो वो सर्कल कैसा बनेगा देखो. ये देखिए ये बन गए दोनों सर्कल्स आपके. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्मॉल एक्स इक्वल टू -1. दिख रहा है ना सबको ये पूरा का पूरा सर्कल. तो थोड़ा बहुत यूनिट में ऊपर नीचे होगा, बट स्टिल आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे डिस्कशन हम लोग क्या करने वाले हैं. ओके तो फिर मैं पहले इसको आप ऑब्जर्व कर लो, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और आप उस क्वेश्चन का मुझे सही से आंसर भी देना, ठीक है यार. तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे. अभी आई थिंक ये थोड़ा प्रोपोर्शनल लग रहा है. नाउ दे आर लिटिल बिट प्रोपोर्शनल. चलो मैंने काफ़ी हद तक प्रोपोर्शनल बनाने की कोशिश की. दिस इज रिप्रेजेंटिंग x इक्वल टू -1. ठीक. सो वी हैव मेड 2 सर्कल्स. दिस वॉज योर स्मॉल r इक्वल टू 0. This is x equal to 1. This is x equal to -1. Now as we have already stated that whatever may be the graph of the Smith chart, they should not be go beyond your unity circle or they should not go beyond your r equal to 0 circle. तो अगर आप देखो इस पूरे के पूरे स्मिथ चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको बताओ इस पूरे के पूरे कांस्टेंट x में स्मिथ चार्ट में कौन सा हिस्सा दिखेगा. सिर्फ इतना सेगमेंट ही तो दिखना चाहिए. चेक कर लीजिए, है ना. असल में है तो पूरा सर्कल ही, मगर आपने पहले ही बोला कि बाउंड्री ऑफ द स्मिथ चार्ट क्या होती है, ये सर्कल. दिस इज योर बाउंड्री ऑफ द स्मिथ चार्ट. दिस इज योर बाउंड्री ऑफ स्मिथ चार्ट. ठीक है. एंड इफ इट इज द बाउंड्री ऑफ द स्मिथ चार्ट देन वी शुड अंडरस्टैंड दैट द कांस्टेंट एक्स सर्कल्स विल नेवर लुक लाइक अ सर्कल, बल्कि वो सर्कल का एक छोटा सा सेगमेंट आपको दिखेगा. जैसे यहाँ पे कंप्लीट सर्कल का छोटा सा सेगमेंट यहाँ पे दिख रहा है, इस कंप्लीट सर्कल का छोटा सा सेगमेंट यहाँ पे दिख रहा है. तो ये वाले सर्कल को आप क्या बोल दोगे, दिस विल बिकम x इक्वल टू 1. व्हाट विल दिस बिकम, दिस विल बिकम x इक्वल टू -1. जैसे ही आप x की वैल्यूज बढ़ाते जाओगे इसी के बेसिस पे आपको डिफरेंट सर्कल्स मिलते चले जाएंगे. तो जस्ट मैंने x इक्वल टू 1 पे आपको बना के ये दिखाया कि फॉर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 you will not actually get the complete circle in case of Smith chart because the boundary of the Smith chart is bounded by the small r equal to 0 circle. उसके बाहर आपको कुछ दिखना नहीं चाहिए. तो ये कांस्टेंट x सर्कल का जितना हिस्सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, उतना हिस्सा आप यहाँ पे कट करके अलग से पेस्ट कर लेना. ठीक है. अब एक चीज़ और बता दो, बाय द वे अगर आप x की वैल्यू इन्फिनिटी कर देते, तो अगर आप x की वैल्यू इन्फिनिटी कर देते तो क्या अगेन से ये पूरा का पूरा जो रेडियस आता वो इसी वाले पॉइंट पे मिल जाता, क्योंकि ये पॉइंट क्या है आपका 1,0 एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट योर 1,0 पॉइंट. ठीक है. तो यहाँ से काफ़ी हद तक ये क्लैरिटी मिल जाती है दैट हाउ शुड वी शो द कांस्टेंट x सर्कल. सो लेट अस ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द कांस्टेंट x सर्कल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक द कांस्टेंट x सर्कल्स यू शुड मेक द बाउंड्री ऑफ द स्मिथ चार्ट. सो दिस इज योर गामा r, दिस इज योर गामा i. अब आप काफ़ी क्लैरिटी से बना पाएंगे चीज़ों को. सबसे पहले हमेशा आपको डिफाइन करनी होती है बाउंड्री. So this is the boundary of the Smith chart, or you can say that this is the unity circle that we are interested about. Okay. चलिए अभी देखिए यहाँ पे this is your small x equal to 0 and this is the boundary. ये है boundary of the Smith chart. अब यहाँ से शुरू करते हैं. दिस पॉइंट इज 1,0. एक तो अभी अभी आपने बना के शो कर दिया, उसको तो आप डायरेक्टली यूज कर लो, ये वाला दिस. है ना. ये कौन सा वाला है, यहाँ पे आपको 2 दिखने चाहिए, स्मॉल x इक्वल टू 1 एंड स्मॉल x इक्वल टू -1. ऐसे 2 सर्कल्स आपके दिखने चाहिए. अब आपको पता होना चाहिए ये असल में पूरा सर्कल होगा
जिसका जो सेंटर होगा वो हमेशा कहाँ पे लाई करेगा, द सेंटर विल ऑलवेज लाई ऑन गामा आर इक्वल टू 1 एक्सिस। तो मैं यहाँ पे गामा आर इक्वल टू 1 एक्सिस भी आपके लिए शो कर देता हूँ। देखिए दिस इज योर गामा आर इक्वल टू 1 एक्सिस। ओके, सो दिस इज योर गामा आर इक्वल टू 1 एक्सिस। तो कांस्टेंट एक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है समझने में, बट वो मैंने काफ़ी क्लियरली आपको अलग से समझा दिया। तो ये गामा आर इक्वल टू 1 एक्सिस आपको पूरी दिख रही होगी, ठीक। अब इस गामा आर इक्वल टू 1 एक्सिस पे सेंटर्स लाई करेंगे। जैसे इस वाले का सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा होगा, यहाँ पे 1,1 पे। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यूज बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज बढ़ाते जा रहे हो, कि आपके जो सेंटर्स है वो देखो 0 के करीब आते जा रहे हैं, 1,0 के करीब। तो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये देखिए, ये तो एक पर्टिकुलर सेंटर मैंने यहाँ पे शो कर दिया आपको। अब इसके आगे वाला ना आपको मुझे बताना पड़ेगा कि सेंटर्स का मूवमेंट कैसा होगा। ये तो x इक्वल टू 1 की सिचुएशन थी, ठीक है। अब देखो अगर मैं x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू इन्फिनिटी की तरफ जाऊँगा, इस ग्राफ में देखिए x इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो जो सेंटर है वो 1,1 से किधर आता जाएगा, 1,0 पे। मतलब आप जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ाते जाओगे ना, ये सेंटर आपके नीचे आते जाएंगे। सेंटर अगर नीचे आते जाएंगे तो सर्कल्स कैसे होते जाएंगे, छोटे या बड़े, तो सर्कल्स आपके छोटे होते जाएंगे। मतलब फिर ये सर्कल्स आपको ऐसे दिखेंगे। देखिए एक सर्कल ऐसा दिखेगा, एक सर्कल आपको ऐसा दिखेगा। तो ये वाला जो डायरेक्शन है ना, ये आपका इंक्रीजिंग एक्स का डायरेक्शन है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपके जो सर्कल्स है वो छोटे होते जा रहे हैं। क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड पॉइंटिंग डायरेक्शन आपको मिलनी चाहिए जैसे जैसे आप एक्स को इंक्रीज करते जाते हो, और यहाँ से आपको अपवर्ड डायरेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब अगर आप इसके बाहर जाते तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज मिलती, ध्यान से बस सुनते रहो, सारी चीज़ें अभी कनेक्ट हो जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यूज बढ़ती हुई दिखनी चाहिए थी। और देखो आपको पता है कि x की वैल्यूज अगर आपने बढ़ाते 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 इन्फिनिटी कर दी तो आपको क्या मिल जाने वाला था, x की वैल्यू जब आपने इन्फिनिटी कर दी तो आपको रेडियस कितना मिलने वाला था, 0। और अगर आपने x की वैल्यू 0 कर दी तो रेडियस कितने मिलने वाली थी, इन्फिनिटी। तो असल में अगर आप x की वैल्यूज को 0 की तरफ ले जाते तो असल में इस वाले पॉइंट पे जाके आपको कॉन्सेंट्रेट करना। तो ये था x इक्वल टू 0, ये था x इक्वल टू 0.2, ये था x इक्वल टू 0.3, ये था x इक्वल टू 1, ये था x इक्वल टू 2, और फाइनली यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, इन्फिनिटी, इस वाले पॉइंट पे। सिमिलरली नीचे आप नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकते थे, x इक्वल टू -0.2, x इक्वल टू -0.3, ये तो x इक्वल टू -1 आपने बना ही रखा है। दिस इज x इक्वल टू -2 एंड फाइनली x इक्वल टू -इन्फिनिटी। और ये पॉइंट है 1,0, ठीक है। चलो अब एक लास्ट पॉइंट बस इसमें समझो, फिर मैं सारी चीज़ें दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। अब देखिए ज़रा, दो सेगमेंट्स में आप वेरिएशन करिए, एक 0 टू इन्फिनिटी, एक -इन्फिनिटी टू 0। सो आई ऑलरेडी सजेस्टेड यू दैट यू शुड टेक केयर दिस थिंग इनटू 2 डिफरेंट सेगमेंट्स। दिस देखो 0 से इन्फिनिटी वाला जो सेगमेंट होगा उसमें पूरे के पूरे सर्कल्स का मूवमेंट आपको इस एक्सिस के ऊपर दिखेगा। सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू 0 और ऐसे मूवमेंट आप लेंगे। So in this movement your x is changing from 0 to infinity, right? और जब आप x की वैल्यू -इन्फिनिटी से 0 की तरफ जाना चाह रहे हो तो उस केस में देखो आपको पूरा का पूरा सेगमेंट कैसा दिखेगा, उस केस में भी ये पूरा का पूरा डायरेक्शन आपको दिखेगा -इन्फिनिटी टू 0। दिख रहा है? तो टोटल मूवमेंट आपको कैसी दिखी, clockwise. So complete clockwise movement will always give you the increasing value of x from -infinity to +infinity. तो इस वाले पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हो और क्लॉकवाइज मूवमेंट एक पूरा ले लेते हो, सो यू विल हैव द वैल्यूज ऑफ x इंक्रीजिंग फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, जिसमें से -इन्फिनिटी टू 0 विल लाई बिलो दिस गामा आर एक्सिस एंड 0 टू इन्फिनिटी विल लाई अबव दिस गामा आर एक्सिस। तो ये सारे पॉइंट्स अगर अभी तक आपको समझ में आए तो आप मुझे बताइए, फिर हम लोग एक एक करके इसको एक बार रिवाइज करते हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स आप समझ गए हो तो आप मुझे बताइए। यहाँ पे मैंने आपको विजुअलाइज भी कराया दैट वाई ओनली दिस सेगमेंट शुड बी इंटरसेप्टेड बाय दिस कंप्लीट स्मिथ चार्ट, बिकॉज दिस यूनिटी सर्कल इज एक्चुअली giving you the boundary of the Smith chart. So small r equal to 0 will always give you the boundary of the Smith chart, and this particular constant x circles will never look like a circle, rather they will look like a segment of the circles. तो ये segment of the circles में x equal to 1 वाला हमने प्लॉट करके देखा। फिर हमने देखा जैसे जैसे आप x की वैल्यूज को बढ़ाते जाओगे
तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स इंक्रीजिंग, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यूज को बढ़ाते जाओगे, असल में आपका ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिखेगा, मतलब सर्कल्स आपके छोटे होते जाएंगे, और जैसे ही आप एक्स इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे आओगे, दे विल अगेन कॉन्वर्ज टू अ पॉइंट विच इज 1,0। ठीक, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, देख लो सारी बातें। तो जिन लोगों ने अभी कॉन्सेंट्रेशन से सुना वो एक बार दोबारा देख लो। तो सबसे पहले वी वर टॉकिंग अबाउट द कांस्टेंट एक्स सर्कल। सो व्हाट इज कांस्टेंट एक्स सर्कल? सो यू शुड बी कंफर्टेबल विद द इक्वेशन, द सेंटर एंड द रेडियस। व्हाट अबाउट द सेंटर? In the center your x is changing from minus infinity to infinity. You can break it into two parts, which is 0 to infinity and minus infinity to 0. Then you also say that the center will always lie on gamma r equal to 1 axis. तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो सेंटर है आपका वो हमेशा देखो क्या गामा आर इक्वल टू 1 एक्सिस पे लाई कर रहा है। सारे के सारे सर्कल्स का सेंटर, कोई सा भी सर्कल ले लो, ये ब्लू वाले ले लो, ब्लैक, या फिर ये पिंक वाले, सबके सर्कल्स जब आप कंप्लीट करोगे ना तो सेंटर इसी एक्सिस पे लाई करना चाहिए। फिर उसके बाद इसने क्या बोला, देन इट सेड दैट ऑल द कांस्टेंट एक्स सर्कल शुड आल्सो पास थ्रू 1,0। दिख भी रहा आपको, ये 1,0 वाला पॉइंट था और सारे के सारे कांस्टेंट एक्स सर्कल्स यहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक है। देन I gave you this table. What does this table represent actually? This table is representing that at exactly small x equal to 0, you will get the biggest possible x circle which is nothing but your gamma r axis. फिर उसके बाद बोल रहा है जैसे जैसे आप x की वैल्यूज को बढ़ाते जाओगे, the radius of the constant x circle will decrease. Then you said that if x is changing from minus infinity to plus infinity, this will represent a clockwise movement on the constant r circle. या फिर अगर आप बाउंड्री ऑफ द स्प्लिट चार्ट पे क्लॉकवाइज चलोगे, सो यू विल हैव द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द x विच इज मेंशनड हियर। फिर फाइनली इसने बोला इफ x इज चेंजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0, यू विल हैव कांस्टेंट x सर्कल्स बिलो गामा r एक्सिस, एंड इफ x इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यू विल हैव कांस्टेंट x सर्कल्स अबव गामा r एक्सिस, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स, यही पॉइंट्स अभी तक कितने हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करें, ठीक है। तो ये आपका हो गया कांस्टेंट एक्स सर्कल। चलो आगे चलते हैं, आगे इसी डिस्कशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ओके। ठीक है, चलो अब एक पॉइंट आप इसमें और बता दो कि जितने भी आपके कांस्टेंट एक्स सर्कल्स दिख रहे हैं इनकी कॉमन टेंजेंट क्या है, चेक करिए। व्हाट इज द कॉमन टेंजेंट? सो यू विल से दैट दिस एक्सिस, दिस गामा आर एक्सिस इज नथिंग बट द कॉमन टेंजेंट, common tangent to constant x circle, to constant x circle, ओके। चलो इनकी प्रॉपर्टीज भी लिख लेते हैं वन बाय वन, और फिर दोनों की जो कॉमन प्रॉपर्टीज है ना उसको भी एक जगह पे कंपाइल कर लेते हैं। चले, चलो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज इनकी। फर्स्ट, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट x इक्वल टू 0 represents biggest possible constant, biggest possible constant x circle, constant x circle which is your gamma r axis. Second point, all constant x circles have centers on gamma r equal to 1 axis, passes through 1,0, passes through 1,0, common tangent as real gamma axis at gamma r axis, ठीक है। ये हो गया आपके ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद अगर कुछ और पॉइंट्स आप लिखना चाहते हो तो एक दो पॉइंट्स और लिख लो। तीसरा,
as clockwise movement is taken along the boundary of the Smith chart, मतलब small r equal to 0, boundary of Smith chart, what will you have? You will have the increasing values of x. So x will vary from minus infinity to infinity, out of which if x is changing between minus infinity to 0, this will be below gamma r axis, and if x is changing from 0 to infinity, this will be above gamma r axis. Above gamma r axis. Fourth point, small x equal to infinity represents smallest possible circle, smallest possible x circle, which is the point 1, 0. ठीक है, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा 1, 0 पे. तो ये वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी हम लोगों ने लिख लिए, दैट दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ योर कांस्टेंट एक्स सर्कल. एज लॉन्ग एज योर common properties are concerned, you can also write the common properties of these two. So common properties are also very simple. So I'll give you some important constant r and constant x circles so that you can write the properties. तो ये गामा r हो गया, ये गामा i हो गया. ठीक है, चलो कांस्टेंट x कांस्टेंट r सर्कल दोनों आपको बनाने आते हैं, दोनों बना लीजिए. तो कुछ इंपॉर्टेंट ही बनाते हैं, ज़्यादा सारे नहीं बनाते हैं, कुछ ही बनाएंगे इसमें. एक तो ये बना लेते हैं, एक छोटा वाला बना लेते हैं 0.5 रेडियस वाला या फिर 1 वाला. ठीक है, 1 वाला बना लेते हैं, ये बना लेते हैं. वैसे ही कांस्टेंट x में भी 2 बना लेते हैं सिर्फ और सिर्फ. चलो कांस्टेंट x में एक तो ये बना देते हैं, बाहर वाला ये x इक्वल टू 1 वाला, और बाकी ये एक्सिस तो आपके ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक यहाँ पे भी शो कर लो. बस इतने से हम लोग कॉमन प्रॉपर्टीज लिखते हैं. सो इफ यू लुक क्लोजली, this is your small r equal to 0, this is your small r equal to 1. ये वाला जो आपको सर्कल दिखेगा, this will become small x equal to 1. ठीक है, तो इसको बोल देते हैं this is your small x equal to 1. नीचे वाला जो आपको सेम पॉइंट पे दिखेगा, this will become small x equal to -1. इन पे जो क्वेश्चन बनता है ना, उसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं. दिस विल रिप्रेजेंट स्मॉल r इक्वल टू 1, दिस इज योर पॉइंट 1, 0. तो कॉमन प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, और ये आपका हो गया गामा r इक्वल टू 1. दिस पॉइंट इज 1, 0. चलो देख लो, कॉमन प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ईजी है कॉमन प्रॉपर्टीज़ को जस्टिफाई कर पाना. देखिए, अगर आप कॉन्स्टेंट r सर्कल की बात करें, मतलब ये जो सर्कल्स प्रॉपर दिख रहे हैं, जो प्रॉपर सर्कल्स दिख रहे हैं, वो हो गए कॉन्स्टेंट r सर्कल. तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें नोटिस करनी. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट ऑल द सेंटर्स ऑफ द कॉन्स्टेंट r सर्कल लाई ऑन द गामा r एक्सिस. सेंटर्स ऑफ द कॉन्स्टेंट r सर्कल लाई ऑन गामा r एक्सिस, एंड दिस गामा r एक्सिस एक्ट्स एज द टेंजेंट टू कॉन्स्टेंट x सर्कल्स. मतलब जहाँ पे आपके कॉन्स्टेंट r सर्कल्स के सेंटर लाई कर रहे हैं, वो कांस्टेंट x के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है. देखते हैं क्या इसका ऑपोजिट भी ट्रू है. सो यू कैन से दैट ऑन दिस गामा r इक्वल टू 1 एक्सिस द सेंटर्स ऑफ द कांस्टेंट x सर्कल्स आर लाइंग एंड इट इज एक्टिंग एज द टेंजेंट टू कांस्टेंट r सर्कल.
तो ये दोनों पॉइंट आप हमेशा इंटरचेंज कर सकते हो। तो इसको सिंपल भाषा में अगर बोलना हो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि द लाइन वेयर द सेंटर्स ऑफ द कांस्टेंट आर सर्कल्स आर एग्जिस्टिंग विल एक्ट एज द कॉमन टेंजेंट टू कांस्टेंट एक्स सर्कल, एंड द लाइन ऑन विच द सेंटर्स ऑफ द कांस्टेंट एक्स सर्कल्स आर लाइंग विल एक्ट एज द टेंजेंट टू कांस्टेंट आर सर्कल। तो एक कांस्टेंट एक्स सर्कल का अगर आपने कैलकुलेट कर लिया सेंटर्स की पोजीशन, तो जो सेंटर्स की पोजीशन वाली लाइन होगी इट विल एक्ट एज द टेंजेंट टू द कांस्टेंट आर सर्कल एंड वाइस वर्सा। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो जो भी दो फैमिली ऑफ सर्कल्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं उनको बोला जाता है म्यूचुअली ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ सर्कल्स। सो यू कैन ऑल्सो से दैट द कांस्टेंट एक्स एंड कांस्टेंट आर सर्कल्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ सर्कल्स। ये पॉइंट भी सबको समझ आ गया। एक पॉइंट और देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये तो अभी आपने देख ही लिया कि अगर आप कांस्टेंट आर सर्कल पे क्लॉकवाइज मूवमेंट लोगे, दिस क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो दिस विल गिव यू व्हाट, एक्स इंक्रीजिंग, ठीक है। और अगर आप कांस्टेंट एक्स सर्कल पे लेफ्ट टू राइट जाओगे, जैसे मान लो ये कांस्टेंट एक्स सर्कल है, मैं इस पे लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, सो दिस विल हैव वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स पे आप याद रख सकते हो दैट ऑन कांस्टेंट आर सर्कल इफ यू मूव क्लॉकवाइज द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज, ऑन द कांस्टेंट एक्स सर्कल इफ यू मूव लेफ्ट टू राइट और यू मूव टूवर्ड्स राइट द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेज। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के तौर पे। फर्स्ट पॉइंट, gamma r equal to 1, this is your tangent to constant r, but centers of constant x यहाँ पे लाई करते हैं। सेकेंड पॉइंट, गामा आर इक्वल टू और रियल गामा एक्सिस, real gamma axis. So real gamma axis acts as tangent to constant x, tangent to constant x, and you can say that they are the centers of constant r circle will lie. Since it is satisfying these two properties, so you can say that they will form orthogonal family of circles, orthogonal family of circles। ये पॉइंट है। और उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन, ये कॉमन प्रॉपर्टीज है, ठीक है। क्लॉकवाइज movement on constant x has r increasing, has, fourth point, left to right movement, left to right movement on constant x has r increasing। तो ये आपके कुछ कॉमन पॉइंट्स आ गए विच यू कैन रिमेंबर इफ यू वांट। ठीक है, ये आपके कुछ कॉमन टेंजेंट वाले पॉइंट्स आ गए। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना। सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ क्वेश्चन, ये जस्ट आप ऐसा समझ सकते हो कि एप्लीकेशन है जो भी अभी तक आपने पढ़ा, तो इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं स्मिथ चार्ट के। सो दिस इज योर गामा आर, इट इज योर गामा आई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द बाउंड्री ऑफ द स्मिथ चार्ट। हमेशा बाउंड्री को जरूर आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आर यू मेकिंग द बाउंड्री करेक्टली और नॉट। सो दिस विल एक्ट एज द बाउंड्री ऑफ द स्मिथ चार्ट। इसमें मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बना के दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस कॉन्स्टेंट एक्स सर्कल, ओके, ओनली दिस। लेट मी गिव यू सम पॉइंट्स हियर। सो आई विल गिव यू द पॉइंट्स लाइक दिस। दिस इज पॉइंट ए, this is point B,
this is point C, this is point D, and this is point M. You know that this on this green circle, the value of R will become 0. On this red circle, the value of X will become 1. और यहाँ पे X इक्वल टू -1, इतना आपको पता है, ठीक है। इस वाली लाइन पे अगर आप बात करोगे, ऑन दिस लाइन, ऑन दिस पॉइंट द X विल बी 0, क्योंकि ऑन दिस लाइन योर X इज ऑलवेज 0, ठीक है। चलो अब एक एक करके आपको बताना है कि इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग अबाउट द नेचर ऑफ द लोड ऑन दिस डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स मैं आपको करके दिखा देता हूँ अलग अलग। इन सारे पॉइंट्स पे आपको बताना नेचर ऑफ लोड, ए पे, सी वाले पॉइंट पे, बी वाले पॉइंट पे, डी वाले पॉइंट पे, एम वाले पॉइंट्स पे। सो ऑन दीज पॉइंट्स यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द लोड, नेचर ऑफ लोड। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले पॉइंट ए हम लोग लेते हैं अंडर कंसिडरेशन। सो लेट मी टेक द पॉइंट ए। एट पॉइंट ए यू नो दैट अगर ये पॉइंट ए को पूरा का पूरा हम लोग ऑब्जर्व करें, सो वी नो दैट ZL बाई Z0 इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस J स्मॉल x। ये तो हमने पहले डिफाइन कर रखा था, क्योंकि लाइंस वगैरह आपकी लॉसलेस शुरू में आपने मानी थी। सो दिस Z0 वाज रियल फॉर lossless lines. So since the lines were lossless, so this Z0 was real for you. So I hope it is also correct. अब यहाँ पे देख के बताओ A वाले पॉइंट पे R की वैल्यू कितनी। तो देखो A वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो R की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, ये पूरा का पूरा सर्कल। यहाँ पे R की वैल्यू आपको दिखनी चाहिए 0, एंड व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ X, इट इज ऑल्सो 0. सो एट दिस पॉइंट यू कैन से दैट एट पॉइंट A स्मॉल r इज ऑल्सो 0, स्मॉल x इज ऑल्सो 0. तो देखो r और x अगर दोनों 0 हो गए तो ZL बाई Z0 आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 0 प्लस J0 और ZL becomes 0. So can you tell me at this point on the Smith chart which type of load should it represent? Should it not represent a short circuit load? Yes. So this will represent your short circuit load. ठीक है, चलो दूसरे B वाले पॉइंट पे आ जाओ। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब इसी के अराउंड पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। बी वाले पॉइंट पे आ जाओ। सो वी नो दैट ZL बाई Z0 इक्वल टू स्मॉल r प्लस J स्मॉल x, ये है ZL बाई Z0, ठीक है। बी वाले पॉइंट पे ज़रा देखना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल r एंड स्मॉल x एग्जैक्टली एट पॉइंट बी। सो इफ यू लुक एट दिस पॉइंट बी, यू नो दैट दिस इज द पॉइंट वेयर r टेंड्स टू व्हाट, इन्फिनिटी, क्योंकि r इक्वल टू इन्फिनिटी पे ही ये पॉइंट आपको मिलता था 1,0। सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, द x कैन ऑल्सो बिकम प्लस माइनस इन्फिनिटी बोथ। तो जब आप x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पुट करते थे माइनस इन्फिनिटी, देन यू ऑल्सो कम ऑन टू दिस पॉइंट and r equal to infinity will also give you the same point. So exactly at B, if I look, I'm getting the value of r as infinity and the value of x as both plus minus infinity, both plus minus infinity. So from there I will get ZL by Z0 equal to infinity plus minus j infinity, or you can say that your ZL will remain infinity plus minus j infinity, and if the load becomes ZL plus minus infinity, so you can say that it will act as your open circuit load. ओपन सर्किट लोड पूरा नाम लिखना रहता है, ठीक है, सिर्फ ओपन सर्किट मत लिख देना, बताना कि आप लोड का आइडेंटिफिकेशन बोल रहे हो। समझ आ गया ना ये दोनों पॉइंट्स ए और बी। तो वैसे ही चलो सी पे आते हैं, सी पे देखते हैं। सो लेट मी अगेन क्विकली लुक ऑन टू दिस पॉइंट सी। सी वाले पॉइंट पे देखते हैं व्हाट आर द वैल्यूज। सो एट पॉइंट सी कहाँ गया, ये इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आर की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, आर इज एक्चुअली 0, बट व्हाट अबाउट एक्स, एक्स इज 1, क्योंकि ये रेड वाली लाइन पे लाई कर रहा है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1, सो लेट मी पुट ऑल दिस वैल्यूज हियर। एट पॉइंट सी ऑल्सो यू विल हैव ZL बाई Z0 एज स्मॉल r प्लस jx। तो यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू इज 0, द वैल्यू ऑफ x एज 1, so you will say that your ZL will lie as j Z0. Since Z0 is always a real quantity in this case, so you can say that now the load will behave as purely inductive nature. So this load will give you the purely inductive behavior.
क्लियर? तो अगर आपने सी वाले पॉइंट को अंडर कंसिडरेशन रखा तो ऑन द पॉइंट सी ऑन द स्मिथ चार्ट द लोड विल बी हैव एज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर. सिमिलरली डी पॉइंट. So if you talk about D, again the ZL by Z0 is small r plus jx. तो D वाले पॉइंट पे चेक करो. This is the point D. On this point D, if you talk about what is the value of small r? Small r तो ये green वाले सर्कल पे प्रेजेंट है. So this becomes 0. What is the value of x? This becomes -1. So let me put all these values here. Small r becomes 0. Small x becomes -1. तो यहाँ से अगर आप ZL देखोगे, this comes out to be minus j z0. Since the line is lossless, z0 is real, so you can say that this will now behave as your purely capacitive load. Purely capacitive load. Fine. Purely inductive load. तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर स्मिथ चार्ट आपको पढ़ना आता है तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे. सिमिलरली अगर पॉइंट M पे आपसे पूछता है that what happens exactly at point M, so you will say that exactly at point M the value of R is also the value of R is 1, है ना? यहाँ पे R की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, and the value of X will become 0. 1 क्यों हो जाएगी? क्योंकि इस पे वाला सर्कल भी पास कर रहा होगा ना. अगर बनाना है तो आप बना लो ये वाला सर्कल. सो दिस इज स्मॉल r इक्वल टू 1 सर्कल. तो यहाँ पे आपको मिलेगा x की वैल्यू 0. कौन से पॉइंट पे आ गए थे? लेट मी कम ऑन टू द पॉइंट E. सो एग्जैक्टली एट पॉइंट E यू विल गेट r इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0. देखो इस पूरे के पूरे सर्कल पे अगर m पॉइंट पे आप आ जाओगे तो m पॉइंट पे तो इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, बट आपके x की वैल्यू तो 0 है. r की वैल्यू आपको कितनी लेनी पड़ेगी यहाँ पे? 1. क्योंकि ये जब आपका इस सर्कल सेंटर से पास करेगा 0,0 से तो ये एक यूनिटी रेडियस का सर्कल आपको दिखना चाहिए. ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ये हो गया आपका 0. सो दिस ZL by Z0 becomes small r plus jx or the ZL becomes equal to Z0. So will you tell me what is this ZL equal to Z0? You know that this is the nothing but your matched load condition. So this is your matched load condition. ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आपका स्मिथ चार्ट का डिस्कशन. तो ये सारे पॉइंट्स एक बार आप क्लियरली देखना. दैट आई हैव टोल्ड यू हाउ द स्मिथ चार्ट इज बीइंग फॉर्म्ड, देन कांस्टेंट R सर्कल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कांस्टेंट X सर्कल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, and common properties. And after the common properties you should also understand if various points are given on the Smith chart, what will be the nature of the load that you have to identify. So in the last case you are getting the matched load. So generally आपके लिए कौन कौन से सर्कल्स इंपॉर्टेंट होते हैं? R equal to 0, R equal to 1, X equal to 0, sorry X equal to 1 and X equal to infinity. So X equal to 0. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.